Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 31.2 दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत। इल्बरी तुर्क्स, इल्बरी तुर्क। In the 13th century, a new kind of dynasty domain emerged in North India. 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक नए प्रकार के राजवंशीय प्रभाव क्षेत्र का उदय हुआ। The Delhi Sultanate had its origin in victories by Muhammad Ghori, who sacked Ghazni in 1151 and then expelled Ghaznavids to Punjab in 1157. दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति मोहम्मद गौरी की विजय से हुई है, जिसने सन 1151 में गजनी को निकाला और फिर सन 1157 में गजनवियों को पंजाब से खदेड़ दिया। मोहम्मद गौरी marched into the Indus basin to uproot the Ghaznavids in 1186. सन 1186 में गजनवियों को उखाड़ फेंकने के लिए मोहम्मद गौरी ने सिंधु घाटी में कूच किया। On the way, his armies conquered Multan 1175, Sindh 1182, पेशावर एंड लाहौर 1186। मार्ग में उसकी सेनाओं ने मुल्तान सन 1175 में, सिंध सन 1182 में, पेशावर और लाहौर सन 1186 को जीत लिया। In 1190, he occupied Bhatinda, which triggered battles with the Rajput king Prithviraj Chauhan, whom he finally defeated in 1192. सन 1190 में उसने भटिंडा पर अधिकार किया, जो राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्धों की वजह बन गया। उसने अंततः सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। Having broken the Rajput hold on western routes to the Ganga basin, the Ghurids armies marched eastwards until Bakhtiar Khalji finally defeated Lakshmana Sena in Bengal in 1200. गंगा घाटी के पश्चिमी मार्गों से राजपूतों के आधिपत्य को समाप्त कर गौरी की सेनाएं पूर्व की ओर तब तक बढ़ती रहीं जब तक कि बख्तियार खिलजी ने अंततः सन 1200 में बंगाल में लक्ष्मण सेन को नहीं हरा दिया। Muhammad Ghori died in 1206. His trusted Mamluk, ex-slave, General Qutbuddin Aibak, governor of Delhi, then declared an independent rule. मोहम्मद गौरी की सन 1206 में मृत्यु हो गई। तब उसके विश्वास पात्र ममलुक पूर्वदास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दिल्ली का सेनापति था, अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। The dynasty of Ilbari Turks was the first in a series that became collectively known as the Delhi Sultanate. इल्बरी तुर्कों का राजवंश उस कड़ी में पहला था जो सामूहिक रूप से दिल्ली सल्तनत के रूप में जानी गई। Later, Ghurid and Ghaznavid efforts to bring Delhi back into their fold were finally defeated by the Delhi Sultan Iltutmish in 1211 to 1236. बाद में गोरी और गजनवी के दिल्ली को वापस अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रयासों को अंततः दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी में असफल कर दिया। इल्तुतमिश must be regarded as the real consolidator of the Turkish conquest in North India. इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्की विजयों का वास्तविक नेता माना जाना चाहिए। He gave
the new state capital, Delhi, a monarchical form of government and governing class. उसने नई राजधानी दिल्ली को राजतंत्रीय किस्म की सरकार और शासक वर्ग प्रदान किए. He introduced Ikta grant of revenue from a territory in lieu of salary. उसने अनुदान के वेतन के बदले भूमि से राजस्व देने की प्रथा शुरू की. He maintained a central army and introduced coins of tanka, silver, and jital, copper. The famous Qutub Minar was completed during his reign. अब देखिए बोल रहा है उसने एक केंद्रीय सेना रखी और टंका चांदी तथा जीतल तांबे के सिक्के चलाए. प्रसिद्ध कुतुब मीनार उसी के शासन काल में पूरी हुई थी. इल्तुतमिश nominated his daughter Razia-Uddin to be his successor. इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया-उद्दीन को अपनी उत्तराधिकारिणी के रूप में नामांकित किया. Still, the new state had enough internal momentum to survive severe factional disputes during the 10 years following Iltutmish's death, when 4 of Iltutmish's children or grandchildren were in turn raised to the throne and deposed. इसके बावजूद नए राज्य में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद के 10 वर्षों में गंभीर दलीय विवाद होने के कारण थे, जिनके चलते उसके 4 बच्चे या बच्चों के बच्चे बारी बारी से गद्दी पर बिठाए और उतारे गए. आगे देखिए. This momentum was maintained largely through the efforts of Iltutmish's personal slaves, who came to be known as the 40 Chihilgan, a political faction whose membership was characterized by talent and by loyalty to the family of Iltutmish. यह मुख्यतः इल्तुतमिश के निजी दासों के प्रयासों से कायम रहा, जो 40 चहलगान के नाम से जाना गया. यह एक राजनीतिक दल था जिसकी सदस्यता प्रतिभा और इल्तुतमिश के परिवार के प्रति निष्ठा से मिलती थी. आगे देखिए. The political situation had changed by 1246 when Ghiyasuddin Balban, a junior member of the 40, had gained enough power to attain a controlling position within the administration of the newest Sultan, Nasiruddin Muhammad, reigned 1246 to 1266. आगे देखिए. सन 1246 में राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया जब 40 के एक कनिष्ठ सदस्य गयासुद्दीन बलबन ने नवीनतम सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिनका शासनकाल 1246 से 1266 ईस्वी रहा, के प्रशासन के भीतर मजबूत हैसियत हासिल कर ली. बलबन, acting as first as Naib, deputy to the Sultan, and later as Sultan, reigned 1266 to 87, was the most important political figure of his time. अब देखिए. पहले सुल्तान का नायब, सहायक और बाद में खुद सुल्तान शासनकाल 1266 से 1287 रहा. बलबन अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती था. Balban stressed the special position of Sultan as shadow of God, Zillallah on earth. बलबन अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती था. बलबन ने खुदा की परछाई जिलल अल्लाह के रूप में सुल्तान की विशेष स्थिति पर जोर दिया. Balban emphasized courtly splendor
डेकोरम एंड एटिकेट। बलबन ने दरबारी शान, मर्यादा और शिष्टाचार पर बल दिया। He also believed in severe setting example punishments even to the nobles. अब देखिए, वह राजपुरुषों तक को ऐसे गंभीर दंड देने में यकीन रखता था जो उदाहरण बन सके। Balban's immediate successor, however, were unable to manage either the administration or the intergroup conflicts between the old Turkish nobility and the new forces, led by the Khiljis. After a struggle between the two factions, Jalaluddin Firoz Khilji assumed the Sultanate in 1290. अब देखिए, किंतु बलबन के आसन उत्तराधिकारी न तो प्रशासन संभालने में सक्षम थे, न पुराने तुर्की राजपुरुषों और खिलजियों के नेतृत्व वाली नई ताकतों के बीच अंतरदलीय संघर्षों को टालने में। दोनों गुटों के बीच हुए एक संघर्ष के बाद सन 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सल्तनत हासिल की। आगे देखिए, अब हम लोग खिलजीस के बारे में पढ़ेंगे। द खिलजी were not recognized by the older nobility as coming from pure Turkish stock, although they were Turks, and their rise to power was aided by impatient outsider, some of them Indian-born Muslims, who might expect to enhance their position if the hold of the followers of Balban and the 40 were broken. खिलजियों को पुराने राजपुरुषों द्वारा शुद्ध तुर्की कुल से आया हुआ नहीं माना जाता था, हालांकि थे वे तुर्क ही, और उनकी सत्ता प्राप्ति के लिए उतावले बाहरी व्यक्ति मददगार रहो, जिनमें से कुछ भारत में जन्मे मुसलमान थे, जो बलबन और चहलगान के अनुयायियों फॉलोअर्स की पकड़ ढीली होने पर अपनी हैसियत बढ़ाने की उम्मीद कर सकते थे। To some extent, then the Khilji power seizure was a move towards the recognition of a shifting balance of power, believed to be the result of both to the developments outside the territory of the Delhi Sultanate in Central Asia and Iran, and to the changes that followed the establishment of Turkish rule in northern India. कुछ हद तक तब खिलजियों की सत्ता पर पकड़ बदलते सत्ता संतुलन की ओर एक कदम था, जो दिल्ली सल्तनत के बाहर मध्य एशिया और ईरान में चलने वाली गतिविधियों और उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना के बाद हुए बदलावों दोनों का नतीजा माना जाता था। Under the Khilji's external policy of conquest, an internal method of absolute control were followed through military expeditions and regulations. खिलजियों के तहत विजयों की बाह्य नीति और पूर्ण नियंत्रण की आंतरिक पद्धतियों का पालन सैनिक अभियानों और नियंत्रणों के जरिए किया जाता था। The Khilji used their Afghan descent to win the loyalties of the discontented nobles who felt that they had been neglected by the earlier sultans. खिलजियों ने अपने अफगान आक्रमण का इस्तेमाल उन असंतुष्ट राजपुरुषों की निष्ठा जीतने के लिए किया जो यह महसूस करते थे कि पिछले सुल्तानों ने उनकी उपेक्षा की थी। जलालुद्दीन खिलजी 1219 AD to 1296 AD tried to mitigate some of the harsh aspect of Balban's rule. जलालुद्दीन खिलजी सन 1290 से 1296 इनका शासनकाल है, ने बलबन के शासनकाल
के कुछ कठोर पहलुओं को हल्का करने की कोशिश की। He was the first ruler to put forward the view that the state should be based on the willing support of the governed, and that since the majority of Indians were Hindus, the state cannot be truly Islamic. वह पहला शासक था जिसने यह राय जाहिर की कि शासक शक्तियों से तत्पर समर्थन पर आधारित होना चाहिए, और चूंकि हिंदुस्तानियों में बहुमत हिंदुओं का है, इसलिए शासन वास्तव में पूर्ण इस्लामी नहीं हो सकता। In 1296, he was assassinated by his ambitious nephew and successor अलाउद्दीन खिलजी। सन 1296 में उसके महत्वाकांक्षी भतीजे और उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। During the reign of Alauddin Khilji, 1296 to 1316, the Sultanate briefly assumed the status of an empire. अब देखें, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल सन 1296 से 1316 में सल्तनत ने संक्षेप में साम्राज्य का स्वरूप ग्रहण कर लिया। In order to achieve his goals of centralization and expansion, Alauddin needed money, loyal and reasonably obeying nobility, and an efficient army under his personal control. अब देखिए, सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण और एक्सपेंशन विस्तार के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलाउद्दीन को पैसे की जरूरत थी। निष्ठावान और पर्याप्त आज्ञाकारी अमीर वर्ग तथा अपने निजी नियंत्रण के अधीन एक दक्ष सेना की जरूरत थी। He had earlier in 1292 partly solved the problem of money when he conducted a lucrative raid into Bhilsa in central India. उसने इससे पहले सन 1292 में पैसे की समस्या आंशिक रूप से सुलझाई थी जब उसने मध्य भारत में भेलसा में धावा बोला था। Using that success to build his position and a fresh army, he led a brilliant and unauthorized raid on the fabulously wealthy Devagiri, modern Daulatabad, the capital of the Yadavas in the Deccan early in 1296. अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए और नई सेना गठित करने में उसे सफलता का उपयोग करने के लिए उसने सन 1296 के शुरू में दक्षिण में यादवों की आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध राजधानी देवगिरी, जो कि आधुनिक दौलताबाद है, उस पर आक्रामक किंतु अनधिकृत धावा बोला। The wealth of Devagiri not only financed his usurpation but provided a good foundation of his state building plans. देवगिरी की दौलत ने न केवल उसके इस बलात् अपहरण के लिए धन जुटाया, बल्कि उसके राज्य निर्माण की योजनाओं के लिए अच्छा आधार भी प्रदान किया। आगे देखिए, centralization and heavy agrarian taxation were the principal features of Alauddin's rule. केंद्रीकरण और भारी कृषि कर अलाउद्दीन के शासन की मुख्य विशेषताएं थीं। The magnitude and mechanism of agrarian taxation enabled the Sultan to achieve two important objectives. One, to ensure supplies at a low price to grain carriers, and to fill the state granaries with a buffer stock, which
linked with his famous price regulation, came as a solution to the critical financial problem of maintaining a large standing army. अब देखिए क्या हुआ। कृषि कर उगाने की मात्रा और क्रियाविधि ने सुल्तान को दो उद्देश्य हासिल करने में सहायता की। पहला, अनाज वाहकों को कम कीमतों पर आपूर्ति सुनिश्चित करना, और दूसरा, राज्य के अनाज के गोदामों को सुरक्षित भंडारों से भरना, जो उसके प्रसिद्ध कीमत नियंत्रणों से जुड़कर एक विशाल स्थायी सेना रखने की नाजुक वित्तीय समस्या के समाधान के रूप में सामने आया। Within 5 years, within 5 years after Alauddin's death, 1316, the Khiljis lost their power. अलाउद्दीन की मृत्यु सन 1316 में हुई थी। उसके 5 वर्षों के भीतर ही, मृत्यु के बाद 5 वर्षों के भीतर ही खिलजियों ने अपनी सत्ता खो दी। The succession dispute resulted in the murder of Malik Kafur by the palace guards and in the blinding of Alauddin's 6-year-old son Qutbuddin Mubarak Shah, the Sultan's third son, who assumed the Sultanate 1316 to 1320. उत्तराधिकारी के विवाद के परिणाम स्वरूप महल के रक्षकों ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और सुल्तान के तीसरे बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अलाउद्दीन के 6 वर्षीय बेटे को अंधा कर सल्तनत हासिल कर ली। 1316 से 1320 तक रहे वो। He was murdered by his favorite general, a Hindu convert named खुशराव खान। वह अपने पसंदीदा सेनापति हिंदू धर्मांतरित खुसरो खान के हाथों मारा गया। Opposition to Khusraw's rule arose immediately, led by Ghazi Malik, the warden of the western marches at Deopalpur, and Khusraw was defeated and slain after 4 months. खुसरो के शासन का विरोध तुरंत शुरू हो गया, जिसकी अगुवाई देवपालपुर में पश्चिमी अभियानों के प्रमुख गाजी मल्लिक ने की। खुसरो हार गया और 4 महीने बाद उसकी हत्या कर दी गई। आगे देखिए। द तुगलक्स। गाजी मल्लिक, who ascended the throne as Ghiyasuddin Tughlaq, reigned 1320 to 1325, had distinguished himself prior to his accession by his successful defense of the frontier against the Mongols. गियासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठने वाले गाजी मल्लिक शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक ने ताजपोशी से पहले मंगोलों के खिलाफ सीमाओं की सफलतापूर्वक रक्षा करने के लिए प्रसिद्धि पाई थी। The Tughlaqs also wished to rule the whole of India. Ghiyasuddin's 1320 to 1325 campaign to Warangal, Orissa and Bengal were directed towards this end. अब देखिए, तुगलक भी संपूर्ण भारत पर शासन करने की इच्छा रखते थे। गियासुद्दीन शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक की वारांगल, उड़ीसा और बंगाल की मुहिम इसी उद्देश्य को लेकर थी। He built the city तुगलकाबाद near Delhi. उसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया। While returning from the Bengal campaign, the Sultan was killed when a wooden shelter collapsed on him at Afghanpur near Delhi. अब देखिए, बंगाल की मुहिम से लौटते हुए सुल्तान की हत्या कर दी गई जब दिल्ली के निकट अफगानपुर में उस पर लकड़ी का एक मंडप गिर पड़ा। The reign 1325 to 51 of Muhammad bin Tughlaq marked both the high point of the Sultanate and the beginning of its decline. मोहम्मद बिन तुगलक के शासन
1325 से 1351 को सल्तनत के उत्थान और पतन दोनों के रूप में अंकित किया गया। The period from 1296 to 1335 can be seen as one of nearly continuous centralization and expansion. सन 1296 से 1335 तक का समय लगभग सतत केंद्रीकरण, कंटिन्यूअस सेंट्रलाइजेशन और विस्तार, एक्सपेंशन के दौर के रूप में देखा जा सकता है। आगे देखिए। In the 14th century, chronicle of Firoz Shah Tughlaq's reign in Delhi, contemporary historian Ziauddin Bahrain said that history is the knowledge of their annals, that is, the historical records and traditions of prophets, caliphs, sultans, and great men of religion and government. अब देखिए, दिल्ली पर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के इतिहास में समकालीन इतिहासकार गियासुद्दीन बरनी कहता है कि इतिहास वर्ष क्रम के अनुसार घटनाओं के विवरण अर्थात पैगंबरों, खलीफाओं, सुल्तानों और धर्म तथा सरकार के महान लोगों के ऐतिहासिक अभिलेखों और परंपराओं का ज्ञान है। The Tughlaq dynasty ended soon after the Timur's invasion, but Sultanate survived, though it was merely a shadow of its former self. तुगलक वंश तैमूर के हमले के बाद जल्द ही समाप्त हो गया, लेकिन सल्तनत बची रही, हालांकि वह केवल पुरानी सल्तनत की छाया ही रही। Timur's nominee captured Delhi and was proclaimed the new Sultan and the first of Sayyid dynasty 1414 AD to 1451 AD, which was to rule the earlier half of the 15th century. तैमूर के प्रतिनिधि ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वह नया सुल्तान घोषित कर दिया गया, जो 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के प्रारंभिक वर्षों तक सन 1414 से 1451 तक शासन करने वाले सैयद वंश का पहला शासक था। Their rule was short-lived and confined to a radius of some 200 miles around Delhi. They kept the machinery going until a more capable dynasties, the Lodhi, took over. The Lodhis were of pure Afghan origin and brought an eclipse of the Turkish nobility. उसका शासक अल्पकालिक था और दिल्ली के आसपास लगभग 200 मील के घेरे में सीमित था। उसने तंत्र को चालू रखा जब तक कि उनसे ज्यादा योग्य लोधी वंश ने उन्हें नहीं संभाल दिया। लोधी शुद्ध अफगान मूल के थे, जिन्होंने तुर्की कुलीनता पर ग्रहण लगा दिया।